Good morning to all of you. Myself, Professor Preeti More. I'm going to deliver today's session on wiring components, tools, and safety devices. In last lecture, we have seen the all the syllabus of electrical material and wiring practices. Now, in this session, we will discuss the topic wiring components and tools. My dear students, at the end of this session, the student should be able to identify the different electrical hand tools, then explain the function and operation of electrical tools and equipments. Next one is sustained interest in explaining the use and function of tools and equipments used in electrical installation and maintenance. Then classify tools according to its specification, uses and function. At the end of this session, आप लोगों आप लोग आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स कौन कौन से हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन उसका फंक्शन एंड ऑपरेशन आप लोगों को पता चलेगा। या देन जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस करते वक्त जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगते हैं उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ आप क्लासिफाई कर सकते हैं tools according to its specification. Okay, so my dear students, you all, it forms accident while removing the insulation by teeth. So avoid this. Use the proper tools to stripling. Okay, now electrical electrical tasks can be accomplished systematically to save time, efforts and resources. अगर हम इलेक्ट्रिकल टास्क अगर सिस्टमेटिकली करते हैं तो हमारा टाइम भी सेव होगा, हमारे एफर्ट्स भी सेव होंगे और हमारे रिसोर्सेज भी। मोस्ट ऑफ द वर्क कैन नॉट बी डूइंग यूजिंग बेयर हैंड्स। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम विदाउट यूजिंग सेफ्टी टूल्स हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द वर्क कैन नॉट बी डन यूजिंग बेयर हैंड्स। टू डू द टास्क electrical tools or equipments are needed to perform the job. Then this lesson or this session will discuss the function and use of the each tools or equipments used in electrical installation. Electrical hand tools classification. Classification of electrical hand tools. There are different types. First one is the measuring tools, then striking tools, splicing, cutting and holding tools, boring tools, driving tools and soldering tools. So, as you know, the electrical installation requires handy tool kits for simplicity, reliability, and safety purpose. The basic tools like a screwdriver and pliers can help in accomplish a particular task, but for a specialized job like a wiring, lighting, a special tool kit is required. For is
case of wiring installation and to achieve quality work, it is recommended to select standard tools. Safety is given prior importance to prevent fatal accident while wiring installation work. An engineer need to do well acquainted with the safety tools in terms of material quality. It makes safety standard, ease of work, cost and maintenance of tool. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हम लोगों को बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, इसके यूज़ करके हम वो पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट करते हैं। जैसे कि कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर जॉब है, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड टूल्स की ज़रूरत रहती, स्टैंडर्ड टूल्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है। और हमेशा एक बात हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, सेफ्टी इज गिवन अ प्रायर इम्पोर्टेंस टू प्रिवेंट अ फैटल एक्सीडेंट। सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये प्रायोरिटी हम सेफ्टी को देना चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सके। ओके, सो वाइल वायरिंग इंस्टॉलेशन वर्क और एनी अदर इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग वर्क, take a safety first. Okay, now next one is the basic electrical hand tools and equipment. So one by one हम सभी hand tools देखेंगे. So first one is the driving tool screwdriver. So first one is the driving tool screwdrivers. Screwdrivers, this tool is made up of hardened steel and tempered at the tip. It is used to loosen or tighten screw with slotted heads. इसका अगर आप टिप देखते हैं तो आप टिप ये स्लॉटेड हेड्स का रहता है. दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड शेप्स. ओके, सो ड्राइविंग टूल्स screwdriver, there are a flat-head screwdriver in many sizes. It is used to drive screw with the straight liners notch in their head. आप अगर देख पा रहे होंगे तो वो जो स्क्रू ड्राइवर है उसके जो टिप है या हेड है वो फ्लैटन है. द ब्लेड टिप इज वेज शेप्ड and looks similar like a mathematics negative sign. The principal drawback of a flat-head screwdriver is that it's prone to slipping out of the screw slot. So, choosing a screwdriver that fits just right is key to correct use. Now, second one is the standard flat screwdriver. In standard flat screwdriver, the blade tip is wedge shaped and resembles a negative sign. This is used to drive screw with a single slot head. आप स्क्रू ड्राइवर, ये स्टैंडर्ड फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का जो टिप है, इट्स मैथमेटिक्स का जो नेगेटिव साइन है उस टाइप का उसका आपको टिप दिखाई देता है. और दिस इज यूज टू ड्राइव स्क्रू विद द सिंगल स्लॉट हेड. जो आपने स्क्रू आप लोगों ने देखा होगा कभी स्क्रू टाइट करते टाइम जो सिंगल स्लॉट हेड रहता है उसे टाइट या रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर. दिस हैज़ अ क्रॉस टिप that resembles a positive sign, mathematics positive sign. It is used to drive the screw with a cross slot head. ओके, तो ये जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, इसका जो टिप है, इसका टिप हम लोगों को पॉजिटिव साइन, प्लस का जो साइन है अपना मैथमेटिक्स का, उस टाइप का हम लोगों को साइन दिखाई देगा एट द टिप ऑफ द स्क्रू ड्राइवर. और दिस इज यूज टू ड्राइव स्क्रू विथ क्रॉस स्लॉट हेड. स्क्रू देखे होंगे आप लोगों ने, उसके ऊपर क्रॉस का साइन जो रहता है वो उस टाइप के स्क्रू टाइट और लूज करने के लिए दिस फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर वी यूज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टबी स्क्रू ड्राइवर.
This name come in either standard or Phillips. It is available in either standard or Phillips screwdriver with the short shank और ब्लेड एंड शॉर्ट हैंडल. इसका जो हैंडल है ये शॉर्ट रहता है. आपने इसके पहले का फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर देखा था, उसका जो हैंडल है या उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू द स्टबी स्क्रू ड्राइवर. इट इज़ यूज टू drive the screw in case of space conjunction or in tight place where a tight screwdriver cannot be used. जहाँ पे हम लोगों को बहुत कम जगह रहती है उस टाइम हम लोग यह स्टबी स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द हैमर्स, striking tools. There are types of hammer: claw hammer, mallet hammer, that is also called as a rubber type hammer. इसका जो हेड है ये रबर का रहता है. देन नेक्स्ट वन इज द बॉल पिन हैमर. ओके. जब ये जो इलेक्ट्रिशियन रहते हैं वो इस टाइप के हैमर यूज़ करते हैं. अब इसका जो आपको हैंडलिंग पोर्शन दिख रहा है वो वुडन मटेरियल का बना हुआ रहता है. जैसे कि हम लोगों को ये भी पता है कि मार्केट में स्टील के अवेलेबल है, बट इन केस ऑफ द वायरिंग पर्पस वी यूज़ द वुडन हैंडल material hammer. It's because safety point of view we use the wooden handle material hammer. Okay, so next one is the splicing, gripping, holding tools. Pliers. These tools are made from metal with insulators in the handle and are used for cutting, twisting, bending, holding and gripping wires and cables. प्लायर्स आप लोगों ने सभी ने देखा है, सभी के घर पे प्लायर्स का यूज़ किया जाता है. जब हम लोगों को कट करना है, वायर्स कट करने हैं या वायर्स ट्विस्ट करने हैं, ब्लेंडिंग करने हैं या होल्ड करना है वायर्स या केबल, उस टाइम हम प्लायर्स का यूज़ करते हैं. सो देर आर टाइप्स ऑफ plier. First one is the combination plier. combination plier यानी लाइनमन्स प्लायर, इसे कहते हैं लाइनमन्स प्लायर भी कहा जाता है. सो size available of combination plier is 150 mm to 200 mm according to the length size. यानी according to the length size may vary. Materials used for combination plier, it is insulated plier is used to prevent current flow through the human body. Purpose primarily used for wire twisting, cutting, gripping of round and flat jobs. This is used for ग्रिपिंग के लिए या होल्डिंग के लिए या कटिंग के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर यूज़ करते हैं. अगर डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं ये कॉम्बिनेशन प्लायर की डायग्राम है. इस टाइप का प्लायर हम सबके घर में रहता है और इसका जो साइज़ है ये वैरी करता है, लेंथ साइज वैरी करता है. इट साइज़ जो है 150 mm से 200 mm तक अवेलेबल है. और साथ ही साथ इसका जो पर्पस मैंने आपको बताया ट्विस्टिंग, कटिंग, ग्रिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है. और इसका हैंडल जो है ये इंसुलेटेड हैंडल रहता है और इसका जो टिप है ये मेटल मेटल बॉडी रहती है टिप की. मेंटेनेंस क्या रहता है कॉम्बिनेशन प्लायर का, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ हैमर. बहुत ज़्यादा कुछ भी ठोक पीट करनी है और प्लायर दिखा तो उससे ही हम लोग स्क्रू टाइट यानी कि उस पर हैमरिंग करते हैं.
so it should not be used as a hammer. Prevent from rust. Then hot substance grip should be avoided. Lubricate the moving part. इंसुलेशन शुड नॉट बी डैमेज। इसका इंसुलेशन अगर डैमेज हो गया तो ये एज अ सेफ्टी टूल्स करके हम नहीं यूज़ कर पाते। देन नेक्स्ट वन इज द साइड कटिंग प्लायर्स। साइड कटिंग प्लायर्स, अब ये दिस टाइप ऑफ pliers is used for cutting fine, medium and big cables, or this is available in 7500, 150, 200, 300 mm size available. देन पर्पस, मैंने अभी आपको बताया इसका पर्पस क्या है। इट इज़ यूज फॉर कटिंग, कटिंग, पुलिंग एंड निपिंग। इसे हम कहते हैं निपिंग भी कैसे से। द इंसुलेशन फ्रॉम वायर, इट्स ब्लंट वाइट nose is used to twist wires before a nut or any device। जैसे हम लोगों को देखा है हम लोगों ने इसका, अगर हम लोगों को ट्विस्ट करना है तो हम लोग इसके जो टिप है इसमें केबल को पकड़ के इसको ट्विस्ट किया जाता है। और ये भी हम लोगों ने अपने घर में देखा है साइड कटिंग प्लायर्स। इसके जो यूजेस है ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ताकि हम लोग कहाँ पे कौन से प्लायर्स या कौन सा टूल्स यूज़ करें ये समझ में आ सके। देन नेक्स्ट वन इज द long nose plier। Long nose plier, again it is available in size 100 mm, 150 mm and 200 mm. Which material is used for long nose pliers? So the material is used, still we use for the long nose plier। देन टाइप्स, जैसे कि लॉन्ग नोज प्लायर में अगेन टू टाइप्स, फ्लैट एंड राउंड नोज प्लायर। इसका पर्पस क्या रहता है? वेयर वी यूज दिस टाइप ऑफ प्लायर्स यूज फॉर होल्डिंग, टाइटनिंग एंड लूजिंग। अगर हम लोगों को होल्ड करके रखने हैं केबल, या टाइट करने हैं या लूज करना है, तो दिस टाइप ऑफ लॉन्ग नोज प्लायर वी कैन यूज। देन नेक्स्ट वन इज द वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर यानी क्या होता है? This is this is a tool used for striping or removing the insulation of connecting wires। अगर हम लोगों को कोई केबल से या वायर से उसका अगर इंसुलेशन रिमूव करना है तो वायर स्ट्रिपर का यूज़ करना चाहिए। और रेंजिंग फ्रॉम गेज 16 टू गेज 10 टू गेज 16 तक वायर स्ट्रिपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिकल knife। Electrical knife, this is used by linemen to remove insulation of wire and cables in low and high voltage transmission line। Material is used for the knife is cutlery steel। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल्स इन द वर्कर्स टूल किट्स। जो लाइनमन्स है उनके टूल किट्स में का ये इम्पोर्टेंट टूल है, और इट इज़ मेड अप ऑफ हाई ग्रेड स्टील। इट्स पर्पज इज टू रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द वायर्स। इट शुड बी फोल्डिंग नाइफ सो दैट इट कैन बी easily kept in वर्कर या लाइनमन्स पॉकेट। हैक्सॉ। हैक्सॉ हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स भी इस पे किए होंगे कि हैक्सॉ दिस टूल इज़ यूज फॉर कटिंग पाइप्स, कंड्यूट्स एंड केबल। आप लोगों को अगर पाइप्स कट करने हैं, कंड्यूट्स कट करना है या केबल्स कट करने हैं, सो दिस टाइप ऑफ हैक्सॉ वी यूज़। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कटिंग बिग कंडक्टर्स। बड़े कंडक्टर्स जो रहते, बिग कंडक्टर्स जो रहते हैं उसे कट करने के लिए भी
हेक्सॉ का यूज़ किया जाता है। टेस्ट लाइट लैम्प। Continuity tester or test light lamp is a device which is used to indicate whether there is a continuous path for current flow in an electrical circuit or device। यानी कि वो डिवाइस में करंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट लाइट का यूज़ किया करते हैं या कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ करते हैं। इट अलाउज यू टू टेस्ट कंडक्टर्स विदाउट हैविंग पावर ऑन। Continuity testers have their own battery supplied power. The light in the continuity tester comes on when its circuit is completed by a switch, conductor, or appliances. It is least complicated of all the instrument that residential electrician may use. Okay, so thank you all of you for watching this video, and I hope all of you got the all ideas regarding the different types of get the ideas regarding the different types of safety tools which is used for the electrical wiring. So dear student, if you have any query or any doubts, please send me a message, or please write down the your doubts in the comment box. So thank you very much. Next session will be continue on next lecture. Thank you.